Hello everyone, my name is Lohit Jindal and I am back with the next session of NACJS series, right? So in the previous session we did number theory, so that is completed now. So today we are going to see some problems based on which you generally call word problems, right? So in which आपको क्या करना पड़ता है? You'll have to basically understand the question and form a mathematical equation or a logic to solve the question, right? आपने आई थिंक स्कूल में किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस सो विल बी सीइंग सम क्वेश्चंस व्हिच आर प्रीवियस ईयर NACJS and some of type of the questions which are basically kind of those questions which are likely to come in NACJS, those kind of questions, right? So I hope all of you are ready for this session, right? तो बच्चों मैं आपको एक ही बात बोलूंगा अगेन, जस्ट लाइक एवरी सेशन, प्लीज कीप योर नोटबुक्स एंड पेन्स अलोंग साइड, तो आप सॉल्व करो मेरे साथ साथ. So whenever I post the question, pause the video. So try the question yourself first, है ना? पहले आप खुद try करो कि हो पाता है या नहीं हो पाता है. Then only further see the video, right? तो वो बहुत जरूरी है कि आप pause करके पहले खुद try करो and then watch the solution, right? तो all right guys, तो start करते हैं on the word problems. Let's see the first question of the day. All right, so this is a calendar problem. See, if 3rd January 2016 was a Sunday, okay, so 2016 में 3rd January was a Sunday, what will be the day on 6th of April 2016? So बच्चों आपने वो क्वेश्चन तो किए होंगे स्कूल के अंदर, राइट, कि नेक्स्ट ईयर उसी डेट को क्या दिन होगा. ओके, we might see that kind of a question also as well today, but before that this is a question in which it is still 2016 only, right? The year is 2016 only, but January से लेके April तक जा रहे हैं and we are being asked about the day, what day it will be, right? तो देखते हैं बच्चों इसको सॉल्व करके. देखो 3rd January की बात कर रहे हैं, so since January has 31 days, so I'll have to count the number of days from 3rd April to 3rd January to 6th April, right? मुझे number of days count करने पड़ेंगे and then I'll have to count the odd days. बच्चे odd days क्या होते हैं? How many complete weeks, जब कंप्लीट वीक्स आप देखते हो उसके जो एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं दैट आर कॉल्ड ऑड डेज. फॉर अ सिंपल एग्जांपल, लेट्स से 9 डेज का गैप आ गया, अगर लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू स्टार्ट विद दिस. सो लेट्स से यहाँ पे 9 डेज का गैप होगा. अब 9 डेज में यू कैन ओनली फॉर्म वन कंप्लीट वीक, 7 से डिवाइड करना है आपको, राइट? सो 2 इज द रिमाइंडर, राइट? सो 2 ऑड डेज हो गए आपके, है ना? सो सिमिलरली लेट्स से देयर आर 17 days. In 17 days you'll have 2 complete weeks, so 14 days plus 3 days, right? So 3 odd days. तो इस तरह से हम odd days की बात करते हैं. So basically you can say total number of days divided by 7, the remainder is your odd days. ठीक है, तो उससे हमें completely idea लगेगा ना, because देखो अगर एक week complete हो जाता है तो उसी दिन तो फिर वही दिन होगा, it's a multiple of 7, then वो day वही होगा, right? So इसीलिए हम odd days को calculate कर रहे हैं. सो बच्चों अभी पहले हम गैप देखते हैं 3rd जनवरी से लेके 6th अप्रैल तक कितने डेज हो गए, राइट? सो इन जनवरी 31 minus 3, सो दैट इज इन जनवरी, राइट? सो फरवरी के अंदर कितने हो गए? सो दिस इज 28 days. एंड फरवरी, सिंस इट्स अ लीप ईयर, देखो 2016, बी केयरफुल, एनी ईयर दैट इज मल्टीपल ऑफ 4 यहाँ पे लीप ईयर हो जाएगा 2016. सो फरवरी में कितने हो जाएंगे डेज? 29. In March there are 31 days, and finally in April, since I have to see for the 6th April, there will be 6 days, right? So what is the sum of the days, bachcho? 60 plus 34, so 94. So bachcho there are a gap of 94 days, right? अब आपको ये देखना है how many number of odd days will be there, so you'll have to divide 94 by 7 जैसा मैंने आपको बताया. तो क्या मिलेगा आपको इससे? There will be 13 complete weeks plus a remainder of 3, right? So 13 plus 3 by 7 लिख सकता हूँ इस fraction को. So this 13 represent complete weeks, right? And from this thing I get 3 odd days. तो 3 extra days हो गए, right? So 3rd January क्यों क्या था? Sunday था. So it's like basically saying Sunday plus 3 odd days. क्या दिन मिलेगा आपको? संडे के बाद 3 दिन और ऐड करने, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. सो द डे वुड बी वेडनेसडे. सो दिस विल बी योर आंसर. वेडनेसडे विल बी द डे. सो बच्चों बी ऑप्शन शुड बी योर आंसर.
to this question. Okay, I hope it is clear. ये odd days का concept आपको clear होना चाहिए. Okay, so generally you can see in a complete year, since it's 365, if it's a normal year 365 and not a leap year, तो उसके अंदर one odd day होगा. Since 364 is a multiple of 7, right? There will be one odd day, and in a leap year there will be 2 odd days, right? That should be clear to you. Okay, so all right, check karte hain next slide pe what is the answer. Okay, and yes, B option is your answer, right? All right, I hope you have got an idea ki kaise karte hain aise questions ko, right? Now let's see the next question, that is of NSEJS 2017, right? तो देखो बच्चों, on 71st Independence Day, right? So first Independence Day वो कब था? 1947 में था first Independence Day तो, right? Isn't it? ऐसे मत सोचना कि 1948 में first आएगा. So what will you do? 71st कैसे होगा 71st? So 1947 plus 71 minus 1, right? क्योंकि 1947 में first था. So that comes out to be 2017. So 2017 में आपका जो इंडिपेंडेंस डे था that was on Tuesday. ठीक है बच्चों, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स देयर विल बी अ ट्यूसडे ऑन इंडिपेंडेंस डे. आपको भी ये देखना है आफ्टर हाउ मेनी मोर इयर्स देयर विल बी ट्यूसडे ऑन इंडिपेंडेंस डे. सो आप चाहते हो कि सेम हो जाए किसी दिन, राइट? सो आप ये चाहते हो कि किस ईयर के अंदर उसके बाद में ट्यूसडे ही होगा इंडिपेंडेंस डे में, ठीक है? सो बच्चों हमें क्या पता है, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. देखो 2017 से 2018 में गए हम, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, you'll get added one odd day, एक odd day ऐड हो जाएगा, राइट? तो 2018 में किस दिन होगा वो? इंडिपेंडेंस डे वेडनेसडे को होगा, राइट? ऐसा होगा. सो हमें यहाँ से एक आइडिया लगाना है कि इस तरह से एक एक हम ईयर आगे बढ़ाते जाएंगे. जब तो नॉन लीप ईयर है तब तो एक दिन बढ़ता है, राइट? एक ऑड डे से ऐड हो जाता है. जब बट लीप ईयर आएगा तब 2 ऑड डेज ऐड हो जाएंगे, राइट? सो हमें अब ये सोचना है, सो अगर मैं ये चाहता हूं कि इंडिपेंडेंस डे ट्यूसडे को ही हो, राइट? तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब जो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं दैट शुड ऐड अप टू बी अ मल्टीपल ऑफ 7, राइट? ताकि सेम डे बन जाए. तो हमें यही चेक करना है अब कितने ईयर्स आगे जाना है टू गेट अ मल्टीपल ऑफ 7. फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 ट्राई करते हैं कि क्या 7 आता है, ठीक है? सो 2018 से 2019 जाएंगे तो दैट विल बी +2, सॉरी +1 डे, 1 मोर डे. देन 2020 तक जाएंगे. नाउ सी 2020 इज अ लीप ईयर और हम इंडिपेंडेंस डे तो 15th ऑफ अगस्त को होता है. सो 2019 से 2020 में जब जाएंगे इट विल एक्चुअली नॉट बी +1, इट विल बी +2 दिस टाइम, है ना? 2 दिन ऐड हो जाएंगे. तो अभी तक देखो कितने बन चुके हैं, 1 2 3 4 डेज हैव बीन एडेड ऑलरेडी, है ना? अभी आगे चलते हैं, 2021 तक जाएंगे तो +1 एक और हो जाएगा. देन 2022 जाएंगे तो +1 एक और हो जाएगा. सो 2 3 4 5 6 डेज ऑलरेडी हैव बीन एडेड. अभी अब नेक्स्ट भी प्राइम नहीं आ रहा है, नेक्स्ट डे इज ऑल्सो नॉट अ, सॉरी लीप ईयर नहीं है. सो 23 तक जाएंगे तो +1 एक और हो गया. सो बच्चों आप ये नोटिस कर पाओगे कि 2013 पे अगर मैं जा रहा हूँ, सॉरी 2023 पे अगर मैं जा पा रहा हूँ, सो टिल देन 7 डेज हैव बीन एडेड, है ना? यहाँ पे क्या कितने डेज ऐड हो गए? 7 ऑड डेज ऐड हो रहे हैं 2017 से लेके 2023 तक. सो दिस वीक अगेन विल बी ट्यूसडे. डे ऑफ द वीक क्या होगा उस दिन भी? ट्यूसडे हो जाएगा. सो हाउ मेनी इयर्स हैव बीन पास? 2023 minus 2017, है ना? After 6 years you can see that 1 2 3 4 5 6. So after 6 years you'll have the Independence Day on the same day. So the answer would be 6, C option, 6 days, 6 years, sorry, right? 2023. अब ऐसा क्यों हुआ? If it would have, अच्छा अब ऐसे सोचो बच्चों, अगर लीप ईयर होते ही नहीं तो 2 दिन वाला फंडा ही ना आता, राइट? तो एक एक दिन ही बढ़ता बस, फिर तो 7 इयर्स के अंदर आना था. बट बिकॉज देयर इज अ लीप ईयर, 1 लीप ईयर इन बिटवीन, तो 6 7 की जगह 6 इयर्स के अंदर ही सेम डे पे इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, राइट? सो दैट इज द क्वेश्चन दैट केम इन NSEJS 2017. ओके, सो यू हैव गॉट एन आइडिया कि किस तरह का क्वेश्चन आता है. ओके, सो लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड what is the answer to this question. And yes, the answer is option C, Tuesday. Okay, C, 6 years. All right guys, आगे बढ़ते हैं. All right, another question of NSEJS 2017. Okay,
लेट्स हैव अ लुक एट इट। ओके, थोड़ा फिजिक्स का लॉजिक से लग रहा है। ओके, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। It is not stopping at a certain station. Stop नहीं हो रहा है. It crosses the person showing the green flag in 20 seconds, and it crosses the platform in 30 seconds, 6 seconds, 36 seconds. What is the length of the train? So बच्चों, actually आप देखोगे अगर ये क्वेश्चन ना थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. See, to find the length of the train, आप ऐसे सोचो, ये इतनी बड़ी ट्रेन है. So a person holding a flag is basically a point, है ना? It's basically person holding a flag. उसके हाथ में क्या है? फ्लैग है, right? Like this. So if the train is crossing a man, it's like crossing a single point. तो जितनी देर में ट्रेन बेसिकली यहां से यहां पहुंचती है, so see, your time will start of 20 seconds का टाइम यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म हो जाएगा when train reaches here, right? ट्रेन का फ्रंट एंड यहाँ पे है और ट्रेन का एंड पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया जब वापस, है ना? सो बेसिकली द ट्रेन हैज क्रॉस दैट पर्सन. बट जो प्लेटफॉर्म होता है वो तो उसकी तो कुछ लेंथ होती है ना. सो प्लेटफॉर्म इज लाइक पर्सन किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, राइट? दिस इज अ प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन अगर इसको क्रॉस करेगी, ओके, आई विल ड्रॉ अनदर डायग्राम. सो लेट्स से दिस इज अ प्लेटफॉर्म एंड दिस इज अ प्लेटफॉर्म और ट्रेन अगर इसको क्रॉस कर रही है, लेट्स से दिस इज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑनवर्ड, यहां तक, तो उसको क्रॉस करने में इसलिए 36 सेकंड्स लग रहे हैं. सो दिस पोर्शन, दिस हाफ ऑफ द क्वेश्चन एक्चुअली इज जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग. प्लेटफॉर्म का कोई रोल ही नहीं है. इफ अगर आपको सिर्फ ट्रेन का लेंथ फाइंड करना है, यू शुड जस्ट नो कि एक पॉइंट को कितनी देर में क्रॉस किया ट्रेन ने, राइट? सो दिस पॉइंट विल बी हेल्पफुल टू अस कि 20 सेकंड्स में इट क्रॉस्ड द पर्सन होल्डिंग द फ्लैग. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. सो 54 किलोमीटर पर आवर have to convert it into 1 kilometer is 1000 meters upon 1 hour is 3600 seconds. So now the units have been converted to meters per second. ठीक है, तो कैलकुलेशन देखते हैं क्या आएगा. zeros will get cancelled, 36 will cancel 2, 18 will cancel 36 for 2, 54 for 3 and 2 will cancel 10 for 5. So this will give you 15 meter per second. तो बच्चों इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी है. 15 meter per second is the speed of the train and if it is crossing the person holding the flag in 20 seconds. So length of the train, okay, will be speed into time, right? That will give you the distance. So speed is 15 into 20 seconds, that is 300 meters. So the answer to this question would be 300 meters, the length of the train. So actually what 36 seconds wala data is just to confuse you. You don't have to get confused by it. Okay, so that is the whole point. I hope it is clear, right? All right, great. So let's see on the next slide also if you have got the correct answer. Yes, so B option is your answer, right? Okay, तो आगे बढ़ते हैं. Let's see. Okay, okay, then let's move on to some another question. Okay, again an NACJS 2016 question, right? तो 2016 का question है. Okay, now this is based on the clock problems. Clock के अंदर हमें पता होना चाहिए कितना डिग्री minute hand या hour hand and seconds hand move, right? So these kind of data you should know. Although it's easy, right? तो देखते हैं. यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो इसमें, बेसिक कुछ कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है. एंड जस्ट हैव अ बिट ऑफ विजुअलाइजेशन, है ना, कि कैसे होना है, कहाँ पे होंगी वो हैंड्स क्लॉक के. ओके, सो बच्चे सी दिस, द एंगल बिटवीन एन आवर आर्म एंड द मिनट आर्म ऑफ अ क्लॉक एट 2 o'clock and 10 minutes, 2:10, राइट? तो बच्चों इसमें ना काफी यूजफुल रहेगा इफ यू आर एबल टू यू नो अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द क्लॉक कि कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, आई विल गिव यू अ हिंट. ठीक है, सी दिस. ठीक है बच्चों, तो देखो पता क्या करते हैं, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली. सो यू कैन एक्चुअली सी कि 2 o'clock से आप टाइम शुरू कर सकते हो एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन सी द डिफरेंसेस बिटवीन द एंगल. ठीक है, तो देखो बच्चों, सो देखो 2:10 पे वेयर इज द मिनट हैंड. मिनट हैंड इज एट एग्जैक्टली, ओके, यहाँ पे 12 लिखा होता है. दिस इज 1, दिस इज 2, हियर इट इज 3, राइट? तो जो मिनट हैंड होगा इट विल बी डायरेक्टिंग एट 2, राइट? It will be directed at 2, the minute hand, at because it is 2 o'clock and 10 minutes, तो 2 पे directed होगा minute hand, right? This is the minute hand. जो आपका hour hand होगा, it must have moved some further, right? देखो
एट एग्जैक्टली 2 o'clock, इसमें ना बच्चे 0 आंसर कर देते हैं, क्यों? दे थिंक एट 2 o'clock अगर 2:10 हो रहे हैं तो आवर हैंड तो 2 पे होगा और 10 मिनट्स हैंड भी 2 पे है, तो 0 आ जाएगा आंसर. सो दैट इज नॉट द केस. बच्चों ये सोचो, एट एग्जैक्टली 2 o'clock, एट एग्जैक्टली 2 o'clock मिनट हैंड इज एट 12, है ना, और आवर हैंड कहाँ पे है? 2 पे. अब जैसे जैसे वो मिनट हैंड आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो, अब या फिर ऐसे सोचो, when this minute hand again completes one revolution, 12 तक आ जाएगा वापस, तो 3 बज जाएंगे. एंड इन दैट प्रोसेस क्या आवर हैंड 2 से 3 तक नहीं चला जाएगा? राइट. सो इट्स मूविंग ग्रेजुअली एंड स्लोली. तो 10 मिनट जब पास हो जाएंगे तो आवर हैंड कुछ तो आगे बढ़ गया होगा ना, ठीक है ना. तो एक्चुअली आपको यही डिफरेंस तो फाइंड करना है, विच इज इजियर एक्चुअली, है ना, क्योंकि 2 o'clock एंड 10 मिनट्स पे मिनट हैंड अब 2 पे आ गया है, तो आवर हैंड थोड़ा बहुत आगे मूव कर गया होगा. आपको वो एंगल ढूंढना है कि कितना आगे मूव कर गया, बस, है ना. यू एक्चुअली हैव टू फाइंड दिस एंगल ओनली. ठीक है. तो अब कैसे करना है? बहुत सिंपल है. तो बेसिकली मुझे ये देखना है, आई हैव टू नाउ कैलकुलेट इन 10 मिनट्स हाउ मच एंगल डज द मिनट हैंड, ओ सॉरी, आवर हैंड रोटेट्स, राइट. तो इसके लिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं. देखो इन कितने घंटे में वो पूरा सर्कल पूरा करता है. इट कंप्लीट्स अ होल सर्कल, आवर हैंड की बात कर रहा हूं. इट कंप्लीट्स द होल सर्कल वन रेवोल्यूशन इन 12 आवर्स, है ना. 12 घंटे में वो एक पूरा सर्कल करता है. एंड 12 घंटे में कितने मिनट्स हुए? ठीक है. सो आप वहां से देखते हैं. देखो 360 डिग्री. ओके, आपको एंगल ढूंढना है ना, तो यहां से देखते हैं. देखो 12 into 60 minutes, in these much minutes it is rotating 360 degrees, right? It's completing a whole circle. So in 1 minute how much is it rotating? 360 divided by 12 into 60, right? And what happens in 10 minutes? 10 मिनट में कितना घूमता है? Will multiply by 10, right? Now let's solve this. 60 will cancel 360 for 6, 6 will cancel 12 for 2, and 2 will cancel 10 for 5. So the answer will be 5 degrees. C option. ठीक है. So that's how simple it is actually. आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए कि 2 बजे से लेके 2:10 तक में क्या हुआ. ठीक है. Exactly at 2 o'clock the hour hand is at 12, sorry, hour hand is at 2 and minute hand is at 12, right? Directing at 12. अब 10 मिनट जब वो आके चल के वो तो 2 की जगह पे आ गया, आवर हैंड की जगह पे आ गया मिनट हैंड, और लेकिन आवर हैंड थोड़ा सा आगे मूव कर गया. हमें वही एंगल ढूंढना है बस, है ना. सो दैट इज 5 डिग्रीज. ओके, आई होप द प्रोसेस इज क्लियर. ठीक है. आई होप बच्चों सबको समझ में आ रहा है. ओके, लेट्स सी द आंसर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. चेक करते हैं. ओके, यस, एंड द आंसर इज सी ऑप्शन, राइट. चलो, आई होप इट इज क्लियर. तो बच्चों वर्ड प्रॉब्लम में एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते. ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली. ठीक है. हाँ, कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आ जाता है, वो हम देखते हैं अभी, है ना. ऑलराइट, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पढ़ने में, तो लेट्स सी. ओके, NSCGS 2019 का क्वेश्चन है. सो लेट्स सी दिस. सी बच्चों, Mr. X with his 8 children of different ages is on a family trip. Okay, all right. तो his oldest child who is 9 years old. देखो सबकी एज अलग अलग है एंड द ओल्डेस्ट चाइल्ड इज 9 years old. तो देखो आप कितने ऑप्शंस है एक्चुअली. 9 years का तो वो है ही. बाकी के जो 7 चिल्ड्रन है दे मस्ट हैव सम एज बिटवीन 1 to 8 एंड सबकी अलग अलग एज है, राइट. सो द ओल्डेस्ट चाइल्ड saw a license plate with a 4-digit number in which one of the 2 digits, each of the 2 digits appear 2 times. तो 2 ही डिजिट है उसके अंदर, ओवरऑल यूनिक डिजिट्स 2 ही हैं, दोनों 2 बार आते हैं. लाइक अ नंबर इज 22, लाइक अ नंबर 2233. सो इसके अंदर 2 डिजिट्स आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, या फिर 2332, कुछ भी हो सकता है ऐसे, है ना. दिस काइंड ऑफ नंबर्स. So using only 2 digits and using each of the digit exactly twice. तो क्या बोला बच्चे ने? Look daddy, she exclaims, that number is evenly divisible by the age of each of us kids. तो जो 9 चिल्ड्रन है उसके, है ना, सॉरी 8 चिल्ड्रन है, जो सबकी एज से वो नंबर डिविजिबल है, जो 4 डिजिट नंबर है, राइट. सो देखो बच्चों, देखो एक की एज तो 9 है, राइट. आउट ऑफ द अदर 7 children they must have the age from, ऐसे लिख देते हैं, age of 7 children is from the set 1 2 3 4 5 6 7
एंड 8, इन 8 नंबर्स के बीच में से 7 यूज हो रहे हैं, तो मतलब कोई एक नंबर हट जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर एज का बच्चा नहीं है वहां पे, राइट? ओके, एंड मिस्टर एक्स रिप्लाइज आल्सो एंड द लास्ट 2 डिजिट्स जस्ट हैपन टू बी माय एज, जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो मिस्टर एक्स की एज है, राइट? सो क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एज ऑफ वन ऑफ मिस्टर एक्स's चिल्ड्रन, राइट? तो बच्चों थोड़ा सा ऑप्शन का भी हिंट लेंगे, फायदा लेंगे इसमें, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव और चेक, है ना? तो यहां से बच्चे एक बात सोचते हैं, देखो हमने सोचा अभी कि 2 डिजिट से बन रहा है, राइट? लेट्स गेट एन आइडिया ना कि किस तरह के नंबर्स हो सकते हैं। देखो, सो लेट्स से देयर आर 2 डिजिट्स ए एंड बी जो यूज हो रहे हैं और दो बार यूज हो रहे हैं ना। तो बच्चे देखो 9 इयर्स का बच्चा तो है ही, सो शुडंट द नंबर बी डिविजिबल बाय 9, है ना? अब उस 4 डिजिट नंबर के अंदर ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स? 2a plus 2b, right? That is the sum of the digits. That should be divisible by 9, है ना? Isn't it? This should be divisible by 9. So it should be of the form 9k. ठीक है? अब बच्चों देखो 2 times a plus b. अब देखो, अब एक बात सोचो, 2 times a plus b should be of the form 9k. लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का ना मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू सोचते हैं। देखो ऑलरेडी जो 2 डिजिट्स हैं a और b, दोज आर सिंगल डिजिट्स, राइट? और वो डिफरेंट भी हैं, तो उनका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 9 plus 8 17, राइट? क्योंकि 2 डिजिट्स उठाने हमें, सिंगल डिजिट नंबर उठाने, तो 9 and 8 ही हो सकते हैं, एंड द सम विल बी 17। इसका मैक्स कितना है? 17, एंड ओवरऑल मैक्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज 34 इज द मैक्स, है ना? मैक्स इज 34, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड 2 से हमेशा मल्टीपल होगा, 2 से डिवाइड होगा, राइट? वेयर राइट हैंड साइड के मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे? 9, 18, 27, है ना? 36 तो 34 को क्रॉस कर गया तो उसको नहीं काउंट करेंगे, राइट? टिल 34, बिफोर 34, 9, 18, 27। तो बच्चों इसमें क्या और बात सोचोगे अगर आप, जस्ट अ सेकेंड, ओके इट्स नॉट चेंजिंग। सो 9 नहीं हो सकता है, वी हैव टू सी एन इवन नंबर, राइट? लेफ्ट हैंड साइड इवन है तो राइट हैंड साइड भी इवन होना चाहिए, तो उससे हमारा क्या हुआ? शॉर्टलिस्ट हो गया, सिंपल। द सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी 18 ओनली, एक ही ऑप्शन बचा। That means 2 times a plus b is 18. That will give me a plus b is equal to 9. That means जो 2 डिजिट्स हमें उठाने हैं वो दोनों डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए। तो अगर एक डिजिट 1 है तो दूसरा 8 ही होगा, राइट? ठीक है, सो दैट इज वन थिंग दैट वी हैव बेसिकली कंक्लूडेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, राइट? ये हो गया। अब मुझे ये सोचना, देखो तो ऑप्शंस देखते हैं बच्चों, यहां से एक आइडिया लगाते हैं। देखो 7 चिल्ड्रन है, तो इसमें इवन एजेस कौन सी हैं, है ना? 2, 4, 6 और 8, 4 इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स पॉसिबल आर 2, 4, 6 एंड 8। अब बच्चों ऐसा नहीं होगा कि चारों 4 में से कम 3 बच्चों की एज तो इवन होगी ना। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जो एक बच्चे की एज हमें हटानी है, जो नहीं है बच्चा, है ना, जिस एज का नहीं है, वो 2, 4, 6 या 8 में से नहीं होगा ना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? कोई 3 तो होंगे। तो आप ये सोचो, इसका मतलब क्या हुआ? आप एक बात सोचो, इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स कंसीडर ऑप्शन ए एंड सी। 4 और 6 में क्या होगा? देखो अगर वो कोई बच्चा, लेट्स से आपने कहा कि 6 एज का बच्चा नहीं है, राइट? लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपने बोला 6 एज वाला बच्चा नहीं है उसमें, है ना? लेकिन उनमें कोई बच्चा है जो 3 से भी 3 एज का तो है ही, 9 का भी है, 3 से डिविजिबल है कोई वो नंबर, इसका मतलब, एंड 4 और 8 से भी डिविजिबल है, तो उसका मतलब वो 6 से तो डिविजिबल है ही ना नंबर। तो इट इज बेटर कि 6 तो नहीं होगा, इसका मतलब 6 से डिविजिबल था वो एज। सेम लॉजिक से 4 भी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर 4 एज का बच्चा नहीं है लेकिन 8 एज का है, तो 8 से डिविजिबल है वो नंबर। अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है, द 4 लाइसेंस प्लेट नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, तो 4 से भी डिविजिबल होगा। सो इट्स नॉट यूजफुल कि 4 और 6 एज का बच्चा ना हो, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ इसका मतलब, राइट? ठीक है, सो ए और सी ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर, ये थोड़ा मेरे को आइडिया लग गया, राइट? ओके, चलो अगर अब मैं मानता हूं कि 5 एज का है कोई बीच में बच्चा, लेट्स से, है ना, 5 एज का कोई एक बच्चा है ना? नाउ चेकिंग द बी ऑप्शन, 5 एज का बच्चा है, और इसका मतलब क्या हो? वो नंबर जो है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 5, इजंट इट? इफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5, अच्छा, ऑल्सो देयर आर मेनी इवन नंबर्स इन द बिटवीन,
तो जो नंबर है इट शुड बी इवन ऑल्सो, इवन तो होना ही चाहिए ना, लास्ट डिजिट तो इवन होना चाहिए, 4 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है एंड सो ऑन, है ना। इवन नंबर 4 इवन नंबर है, उसमें से 3 बच्चों की एज तो इवन नंबर हो सकती है ना। तो जो नंबर है आपका लाइसेंस प्लेट का जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, राइट। नाउ इफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, तो लास्ट प्लेस कुड हैव 1 2 3 4, लास्ट प्लेस पे या तो जीरो ही होना पड़ेगा। इन दैट केस द लास्ट प्लेस हैज टू बी जीरो, क्योंकि अगर 5 का कोई मल्टीपल है तो उसका लास्ट प्लेस, और इवन भी है वो नंबर, तो लास्ट प्लेस जीरो ही होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली बच्चे हम चेक करते हैं। देखो 5 के अगर 5 एज का बच्चा है तो यही केस बनना पड़ेगा, वो हम चेक कर लेंगे, राइट। तो हमने लास्ट प्लेस पे जीरो डाल दिया, वो होना ही पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, तो जो दूसरा डिजिट क्या होना पड़ेगा, 9 ही होना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, 9 ही होना पड़ेगा। सो लास्ट प्लेस इज जीरो। अब देखो बच्चे एक और बात, अब व्हाट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कुड बी देयर, व्हाट डिफरेंट नंबर्स कुड बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 9 एंड 0, है ना। यही मतलब वो अगर एक डिजिट 0 है, सेकंड अदर डिजिट शुड बी 9 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, है ना। और जीरो की लास्ट, एक जीरो की लास्ट प्लेस भी फिक्स्ड है। व्हाट आर द डिफरेंट नंबर्स दैट कुड बी फॉर्म्ड, देखो लास्ट प्लेस पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, सो दिस इज 9 एंड 9, ठीक है। थोड़ी जगह बनाते हैं। So this place is 0, this place is 0, 9 and 9, then 0. Okay, first place पे 0 होना नहीं चाहिए, okay, right, क्योंकि फिर 4 डिजिट नंबर नहीं है, right। अगर आ गया तो ऐसा बन जाएगा। So चलो anyways we will cancel that। तो बच्चों यहाँ पे अब हम देखते हैं, ठीक है। Okay, let's do this on the next slide। Okay, we'll have a little bit of space। Okay, next page पे करते हैं, तो थोड़ा स्पेस, ओके चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, इन द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। फर्स्ट केस क्यों नहीं हो सकता, दैट हैज टू बी रिजेक्टेड, व्हाई, दैट हैज टू बी रिजेक्टेड बिकॉज उसमें बोला था मिस्टर एक्स ने कि लास्ट 2 डिजिट्स हैपन टू बी हिज एज, 0 एज का तो फादर नहीं हो सकता, राइट। सो दिस केस इज कैंसल्ड। ओके, सेकंड केस, चलो ठीक है 90 एज नहीं हो सकती है फादर की, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। 90 could not be the age, but तो क्या होगा इसका मतलब 9090, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर 5 एज का बच्चा तो है ही, राइट। इज इट डिविजिबल बाय ऑल द अदर नंबर्स, हमें देखना पड़ेगा, क्या 7 से डिविजिबल है, ठीक है। हमें यहाँ पे यही चेक करना पड़ेगा, इज इट डिविजिबल बाय द अदर नंबर्स, राइट। जैसे 5 से डिविजिबल है, ओके, बट 4 से नहीं है, आप सिंपल देख पा रहे हो 4 से भी नहीं है। ओके, इफ आई फाइंड 2 सच नंबर्स जिनसे ये डिविजिबल नहीं है, राइट, then this number cannot be the possible number, right। देखो अब ये नंबर 4 से भी डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, राइट। सो दिस कैन नॉट बी द केस। अब दो नंबर से डिविजिबल नहीं है, कैसे पॉसिबल है, फिर ये नहीं हो सकता। एंड द सेम बाय द सेम रीजन, लास्ट 2 डिजिट्स आर 90 ना, वहां से मैं बोल सकता हूँ ये 4 और 8 दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो ये तीनों ही केस कैंसिल हो गए। और हमने ये केस लिया था व्हेन 5 हैज टू बी इंक्लूडेड। तो इससे यहाँ पे मुझे क्या पता लगा, मैंने 5 को मान के कि 5 पक्का आना चाहिए, बाकी सबका मुझे नहीं पता। अगर 5 आ गया तो मेरे पास यही 3 नंबर फॉर्म हो सकते थे, और इन तीनों नंबर्स का कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तीनों नंबर्स पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो व्हाट डज दिस मीन, दैट द चाइल्ड विद द एज 5 विल नेवर बी देयर, है ना, किसी भी बच्चे की एज 5 होगी ही नहीं, ये प्रूव होगा यहां से। ओके, रेदर बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, सो यू विल सी, देखते हैं अभी। एक्चुअली आप देख सकते हो 7 into 8 into 9, दीज आर द यूनिक नंबर्स, इन एज के बच्चे होंगे ही होंगे। अब 5 एज का बच्चा नहीं होना चाहिए, राइट। 5 एज का बच्चा नहीं होगा तो 7 8 और 9 आर द यूनिक प्राइम्स या कह लो उनके मल्टीपल्स कह लो, है ना। एंड दिस इज हाउ मच, 8 into 7 is 56, दिस इज 504। हम ये क्रॉस चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है, ऑल्दो यू डोंट नीड टू आफ्टर डूइंग दिस वन, ठीक है, 5 मार्क कर सकते हो पेपर में। So बच्चों 504 के multiples, there's a multiple of 504 which is I think 5544, that is multiple of 11, so that is a multiple of 504। so 5544, this is divisible by, देखो ये number जो है that is divisible by 1 2, since it's a multiple of 7 8 and 9, it is divisible by 5 1 2 3 4 से भी divisible होगा, 5 नहीं है, 5 हमने हटा दिया,
6 से भी डिविजिबल है सिंस इट्स डिविजिबल बाय बोथ 3 and 2, है ना। 8 से भी डिविजिबल है, 7 8 9 से तो लेके ही आए हम, राइट। सो दिस इज एक्चुअली द लाइसेंस प्लेट नंबर, और लास्ट टू डिजिट्स आर 44, दैट्स पॉसिबल एज ऑफ मिस्टर एक्स आल्सो, है ना, तो जस्टिफाइबल है। So this is the license plate number, okay, and there is no children with the age of 5. So this is a question. तो थोड़ा लेंदी है, ठीक है, बट एक्चुअली बच्चों इसका मैं आपको मतलब शॉर्टकट बोल लो या फिर मैं इसका ट्रिक क्या बोलना चाहूंगा पेपर के अंदर, यू शुड एक्चुअली ट्राई बाय चेकिंग आउट द ऑप्शंस। जैसे थोड़ा बहुत हमने हेल्प लिया, बट हमने काफी कुछ एक्स्ट्रा भी निकाल लिया था, राइट, तो उससे ही फायदा होगा, एंड बाकी ऑप्शंस का आप हेल्प ले सकते हो, right? So guys, I hope this question is clear, and see the answer, that's B option, right? 5, age 5 का child नहीं होगा, okay? All right बच्चों, so that's all from my end, right? So that's it from my end, okay? So I hope you guys learned some new things और समझ में आया, सबको मजा आया इसके अंदर, okay? So guys, you can follow us on these social media handles so that you are up to date with whatever things are going on at VOS. कोई नए बैच लॉन्च होंगे या फिर कोई नया कोर्स लॉन्च होगा, so you'll get to know under all the Olympiads. Okay, so all right guys, that's it from my side. I enjoyed teaching it, so I hope आप सबको भी समझ में आया और मजा आया. Okay, thank you everyone.